Hello, good morning students. How are you? I hope you have seen my earlier videos on mass percentage and ppm. Okay, so after this we have the mole concept. We will not discuss in detail mole concept here because it is a part of class 11 and I am taking the chapter of this chapter for class 12. So before going to this topic, we will take a very brief introduction of mole. I will take only that portion of mole which will help you to find out the molarity and molality, because this video will help you to understand the concentration term, three concentration term: molarity, molality and mole. So before going to molarity and molality, we will discuss first mole. So today we are going to discuss the term mole. Okay, this is mole. तो मोल है बहुत अनमोल, ये समझ लें आप पहले. अगर आपको मोल नहीं पता तो मोलैरिटी एंड सो मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन वी वुड नॉट एबल टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन. सो व्हाट इज मोल? आई विल गिव यू वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हियर. आप एक बात माइंड में रखें कि दुनिया में जो सब्सटेंस है उसको हम सिंपल लैंग्वेज में अपने लिए दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. वो सब्सटेंस जो प्योर सब्सटेंसेस थे, प्योर सब्सटेंस, और जो प्योर नहीं थे, नॉट प्योर. नॉट प्योर का मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गए. फॉर द मोल कंसेप्ट, प्योर सब्सटेंस सपोज आपने सोडियम एटम ले लिया, सोडियम Na एटम, और ये ले आपने मोर देन वन एटम जिसमें सपोज NaCl. NaCl इज ए मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल मीन्स इट इज नॉट प्योर बिकॉज इट इज टू काइंड ऑफ एटम्स. So this is actually element, you can say, because what are element? Substances made up of only one kind of atoms. So it has only one kind of atom. That's why I say it is pure. It has more than one kind of atom, sodium and chlorine. So I say this is not pure. So this is molecule and this is atom. अब suppose सोडियम आपके पास 100 ग्राम है और सोडियम क्लोराइड भी 100 ग्राम है. ये 100 ग्राम एटम था और ये 100 ग्राम मॉलिक्यूल है. तो ये ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स, इसी का दूसरा नाम केमिस्ट्री में मोल रख दिया गया है. तो सिंपल से हमने एक डेफिनेशन लिखी बेटे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं आपको मैं बहुत, इज known as mole of that substance. Mole of that substance. It is this actually. तो कभी भी जब मोल निकालने हो तो मोल के या तो ग्राम एटम्स कहलाएंगे या ग्राम मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे. मॉलिक्यूल का अगर मोर देन वन काइंड ऑफ एटम है तो मोल के लिए ग्राम एटम वर्ड यूज नहीं होगा, ग्राम मॉलिक्यूल वर्ड यूज करेंगे आप. If it is only atom, you cannot say gram molecule, then you will say gram atom. So whenever mole has to be find out or is to be defined, first you have to check what type of substance is given to you, whether it is pure or not pure. Pure means only one single atom is there, and not pure means more than one kind of atoms are there, as we have discussed by taking the example of sodium and sodium chloride. So suppose simple the formula, that's why we have the two formulas for this. So moles is equal to substance weight in gram, substance weight in gram upon atomic weight. अगर substance atom है तो वो atomic weight. वही दूसरी बात, अगर substance molecule है तो ये फॉर्मूला लगेगा फिर आपका substance weight in gram upon molecular weight. molecular weight ये भी मोल है, ये भी मोल्स हुए, ये भी मोल हुआ आपका, दोनों मोल हुए. लेकिन इस मोल को बेटे ग्राम एटम बोलेंगे क्योंकि आपने एटम के लिए क्वेश्चन बनाया है ये, और इस वाले को ग्राम एटम ना बोल के ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे आप. करेक्ट? तो ये तो बात थी दोनों के फॉर्मूले की. तो किसका मोल निकालना हो तो आपको दो चीज पता होनी चाहिए, एक तो उसका वेट पता होना चाहिए ग्राम में, और दूसरा उसका एटॉमिक वेट या मॉलिकुलर वेट. अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलर वेट. और एटॉमिक वेट आप जानते हैं सोडियम का कितना होता है 23, और सोडियम क्लोराइड में 23 इसका, क्लोरीन का 35.5, तो दोनों को ऐड कर लेंगे 58.5. 58.5 will be the molecular weight of this. So it is this. But one point is to be note here that it is a ratio of weight upon weight. Weight upon weight. So because it is a ratio of two same quantity. So जो unit इसकी होगी वो unit इसकी होगी ग्राम 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 ग्राम. So mole is a
इट इज यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इट इज यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ टू सेम थिंग्स क्वांटिटी। ये आप एक बात याद रखेंगे। अब इस मोल के लिए 2-3 खास बातें पता होनी चाहिए आपको, जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो दुनिया का, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स, और इसी नंबर को बोलते हैं बेटे एवोगैड्रोस नंबर। याद रखना इस बात को, एवोगैड्रो ने बताई थी इसकी कैलकुलेशन कहां से आया, एवोगैड्रोस नंबर। और पार्टिकल वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए बच्चे, पार्टिकल का मतलब कुछ क्लियरली डिफाइन करते हैं। पार्टिकल के 3 मतलब होते हैं साइंस में। पहला मतलब आपके पास यहाँ आएगा, पार्टिकल का मतलब एटम भी हो सकता है, पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल भी हो सकता है, पार्टिकल का मतलब आयंस भी हो सकते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। एटम एग्जांपल सोडियम एटम, मॉलिक्यूल का मतलब NaCl, आयन या तो Na पॉजिटिव होगा या Cl नेगेटिव, ये एग्जांपल आ गया। तो अगर सपोज Na प्लस के लिए क्वेश्चन है तो पार्टिकल का मतलब ये और ये नहीं होगा, ये लगाएंगे आप आयंस। सपोज सोडियम पे क्वेश्चन आता है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिकल, क्योंकि सोडियम एक एटम है तो पार्टिकल का मतलब एटम लगाएंगे। सोडियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल है तो पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल लगाएंगे। Na प्लस एक आयन है तो पार्टिकल का मतलब ये लगाएंगे। दूसरा पॉइंट, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज वॉल्यूम एट STP इक्वल टू 22.4 लीटर्स, और लीटर को ml में चेंज करना है 1000 से मल्टीप्लाई तो इट विल बिकम 22,400 ml। तीसरी बात, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, 1 मोल 1 मोल, तो 1 मोल में इतने पार्टिकल और 1 मोल का इतना वॉल्यूम। STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इसकी बात हो रही है। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इतने पार्टिकल्स का वॉल्यूम इतना होता है NTP पे। तो इन्हीं दोनों से थर्ड इक्वेशन क्या बन गई, राइट साइड को इक्वेट कर दो दोनों की। तो दिस मीन्स 6.023 into 10 to the power 23 particles have volume at STP is equal to 22.4 liters। तो 3 बातें आप मोल के लिए हमेशा याद रखेंगे, तभी आप मोल कंसेप्ट में मोल से रिलेटेड प्रॉब्लम कर पाएंगे। हालांकि इन चीजों का यूज अभी 12th में तो नहीं है, बट 11-12 से कोई मतलब नहीं होता। अगर मोल पढ़ा तो मोल पढ़ा। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, अगर आपको 12th के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो इट विल बी सेम टू ऑल ऑफ यू। सो ये नहीं कि मैंने इस बुक से पढ़ा, मैंने उस बुक से पढ़ा, मैं इस बोर्ड का हूं, मैं उस बोर्ड का हूं। ऑल दीज टर्म्स हैव नो मीनिंग। आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो मोल पढ़ना है, मोल पढ़ना है तो मोल पढ़ना है। उससे मतलब नहीं कि हमारे सिलेबस में या उसके सिलेबस में हुआ है। ऐसा पढ़ो कि वो कहीं भी क्वेश्चंस आए, यू कैन डू दैट। तो ये इट वाज द कॉमन अबाउट मोल कंसेप्ट। ये हमें छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। अब छोटी सी एक बात बता दो पहले मैं, अब सपोज कहीं लिखा है ट्वाइस ऑफ NH3, एक नोट पॉइंट बता रहा हूँ, सिग्निफिकेंस। सब्सटेंस को देखना सीखिए, सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है। इसके आगे ये नंबर लिखा है तो आगे वाले नंबर को मॉलिक्यूल बोलते हैं, ये बात याद रखें आप। और ये नीचे ना कुछ नहीं होते हैं, 1 मान सकते हैं आप। इन नीचे वाले नंबर को एटम्स मानते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ से हमें एक बात चली पता, आगे 2 है तो ये कहता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। इसको हम इलॉबरेट करें तो यहाँ पे 2-3 बातें आती हैं। पहला, ये जो लिखा है इसका मतलब ये बात कर रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया की, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। NH3 इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। दूसरा, इस नंबर से आगे वाले नंबर से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके नाइट्रोजन के एटम्स आ जाएंगे। नाइट्रोजन एटम्स 2 into 1 is equal to 2। यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स अगर आपको निकालने हो तो हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू, आगे से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 3 is equal to 6 एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, अगर यहाँ पे आपको टोटल एटम्स निकालने हैं 2 मॉलिक्यूल के अंदर, टोटल एटम्स इन 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, तो ये आ जाएंगे 2 1 जा 2 एटम इसके, 2 3 जा 6 इसके, तो 6 और 2 8 एटम। तो 2 + 6 is equal to 8 एटम्स। ये आपको इस तरह से
पता होना चाहिए. So it is the common about mole. In next video we will learn about molarity and molality. Because mole पता है तभी कर पाएंगे आप. और मोल का एक ही मतलब याद रखना बस, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट. और तीसरा फॉर्मूला इस वॉल्यूम के बेस पे आ जाता है. तो यहीं से हम एक और, ये हमने एक बात आपको ये बताई, एक बात ये भी बता सकते हैं आप मोल के लिए, गिवन वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम गिवन है आपको, गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर, इससे डिवाइड कर दीजिए. दिस विल ऑल्सो गिव्स यू मोल. Thank you. Now next video we will learn about molarity and molality.